पर्सनली फील दैट औरतें जो हैं ऑरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। औरत सामने से अगर इनिशिएटिव ले किसी बात के लिए तो उसको वाहियात या उसको बहुत इजी समझा जाता है। ऑफ कोर्स हिपोक्रेसी, हमारा देश तो जाना ही गया है हिपोक्रेसी के लिए, बट बाकी देश भी जाने जाते हैं अपनी हिपोक्रेसी के लिए। आई रियली टेक द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। अगर मुझे कोई लड़का पसंद है, आई कैन गो अप टू द बॉय। अगर हम लोग एक्चुअली सोचें तो सारी औरतें फाइस्टी होती हैं, और क्यों ना हो। उनकी महिलाएं तो सोचे डिप्रेशन किस लेवल का होता होगा उनके पास, बिकॉज दे कांट इवन टॉक अबाउट मैरिटल रेप सो ओपनली। हाय, दिस इज अहाना कुमरा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। We have with us an actress that almost anyone and everyone is talking about, Ahana Kumra. She's given a very, very impressive performance in Lipstick Under My Burqa. We'll talk about that and a lot of other things. Pleasure having you on Bollywood Hungama, first of all, Ahana. Thank you, Faridud. I'm so excited to be here. Thank you so much, and congratulations for, I think, a very, most importantly, I think it's a very good film. Yeah. And obviously, it's like a really, really nuanced performance as well. हमने देखी प्रोफाइल हटाई, सामने देखी सगाई हो रही है आपकी, फोटो खींच रही है आप। The second Saturday is more than the first Friday in terms of box office, which is, I think, a wonderful sign. Yeah. How does it feel? I think it's very thrilling. Right. And I think somewhere it's reassuring that people are now interested in different type of cinema and a different kind of a communication. So I was very happy to know that that there's a word of mouth that spread, and ज़्यादातर ये normal लोग हैं जो अपनी वाइफ्स और अपने हस्बैंड्स को लेकर जा रहे हैं शो, आई मीन इस फिल्म के लिए, एंड एक वर्ड ऑफ माउथ, एंड सडनली लाइक हमारे फेसबुक पेज, हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स पर लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर कर रहे हैं हम लोगों के साथ। एंड आई थिंक इफ अ फिल्म कैन डू समथिंग लाइक दैट, आई फील दैट सेज अ लॉट अबाउट व्हाट द फिल्म वाज ट्राइंग टू डू. So somewhere I think that has really made us very happy about the fact that हमने कुछ सही किया है. So many times in India we speak about the fact that how Afghanistan people tend to just cage women and they just treat them as like a sex object. Yeah. And but the fact is that when we look in India as well, when we just look at the reactions many times to Lipstick Under My Burqa as well, that when a woman is expressing her sexuality or the fact that she can be the one who can take an initiative, then once again we have so many men and so many people and even women for that matter. Yeah. I personally feel that औरतें जो हैं औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये हर इंटरव्यू में बोला जा रहा है। जी, so but the fact is that the way some sort of reactions they are coming up, that how can she take an initiative? Do you find that we have a hell lot of hypocrisy in our country as well, and people just need to grow up and just come out of it? Yeah. We are a country of Kama Sutra and Khajuraho. We cannot be doing it in 21st century. Yeah. You feel that? This is not. I have actually traveled with this film quite a bit. मैं 1 महीना US रहकर आई इस फिल्म के साथ, और मैंने काफ़ी फेस्टिवल्स में वहाँ पर ट्रैवल किया, मैंने जापान में भी ट्रैवल किया इस फिल्म के साथ, एंड मैंने ये देखा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये प्रॉब्लम एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, जहाँ पर औरत सामने से अगर इनिशिएटिव ले किसी बात के लिए तो उसको वाहियात या उसको बहुत इजी समझा जाता है. सो इट्स वेरी इजी टू जज अ वुमन बिकॉज उसने सामने से बोल दिया कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू. और आप कहाँ देखते हैं, आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज की फिल्म उठा लीजिए, तो आप हमेशा देखेंगे कि ज़्यादातर लड़के लड़की को वू करने की कोशिश करते हैं. जब लड़की थक हार के हाँ कह देती है देन वो एक लव स्टोरी बन जाती है. सो आई फील, मुझे इस फिल्म में इतना इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि यहाँ पर सारी औरतें they were taking the front step, they were the ones who were taking the step forward. Right. और उसके बाद लड़के, the men were just they were substituting and they were helping the women go through with their stories. And बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है. एंड ऑफ कोर्स हिपोक्रेसी, हमारा देश तो जाना ही गया है हिपोक्रेसी के लिए, बट बाकी देश भी जाने जाते हैं अपनी हिपोक्रेसी के लिए. एंड आई थॉट इट इज सो गुड बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम. आई रियली टेक द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड. अगर मुझे कोई लड़का पसंद है, आई कैन गो अप टू द बॉय और मैं उस लड़के को बोल सकती हूँ कि यार आई लाइक यू and I don't see any harm in that. Absolutely. And if I'm sexually interested in somebody, instead of holding myself back and making myself look bad, I'd rather just go ahead and express myself to that person. Whether or not things work out between me and that boy is another thing altogether. लेकिन I think this film has somewhere opened. I mean, जब मैंने इस फिल्म को देखा था, जब स्क्रिप्ट लेवल पे ऑब्वियसली पढ़ा था, तो वो बात बिल्कुल अलग थी. बिकॉज मैंने कहा था यार ये बंदी मतलब शी इज़ वेरी आउट देयर, बहुत फाइस्टी टाइप का कैरेक्टर है. बट अगर हम लोग एक्चुअली सोचें
तो सारी औरतें feisty होती हैं और क्यों ना हो. Absolutely. हम लोग कोई कौन सी like 16वीं सदी में थोड़ी ना जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में हैं. तो you know this is just a step forward and I think it's opened me up a lot. Absolutely, and I think you're right about the other countries part as well. America couldn't elect a woman, in spite of the credentials. इनफैक्ट मैंने इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्रीज देखनी शुरू कर दी हैं ज़्यादातर, लाइक यू नो अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, एंड मैंने काफ़ी कॉन्वर्सेशंस एक्चुअली इंटरनेट पे देखनी शुरू कर दी हैं. एंड आई एम एक्चुअली सीइंग कि बाकी कंट्रीज में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. हमारी कंट्री तो फिर भी थर्ड वर्ल्ड है, एंड यू नो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं. आप सोचिए अमेरिका जैसे देशों में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. वो लोग तो बेचारे फर्स्ट वर्ल्ड हैं, उन लोगों को तो ये एक्सेप्ट करने में भी मतलब उनकी जान जा रही है कि यू नो कि उनके पास और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. और उनकी महिलाएं तो सोचिए डिप्रेशन किस लेवल का होता होगा उनके पास, बिकॉज दे कांट इवन टॉक अबाउट मैरिटल रेप सो ओपनली. हमारे वहाँ होता है, बट एटलीस्ट द पॉइंट इज दैट वी एटलीस्ट आर अवेयर ऑफ इट. वहाँ पर तो अवेयर होने के बावजूद भी मतलब औरतें उस बारे में कभी बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग इतने यू नो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अपने आप को बोलते हैं, लेकिन देयर आर हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दोस कंट्रीज.